السلام علیکم پیارے دوستو۔ سیدنا عمر بن خطاب کا خاندان، جس میں ام المومنین سیدنا حفصہ نے بابرکت پرورش پائی اور زندگی بسر کی، اس کی مثال انسانی معاشرے میں ہمیں شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ سیدنا حفصہ کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جب قریش تعمیر کعبہ کی تجدید کر رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت پر فائز ہونے سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کی پیدائش ان لمحات میں ہوئی جب قریش کے درمیان حجر اسود نصب کرنے کے سلسلے میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت و دانش اور فہم و فراست سے اس کا ایک ایسا حیرت انگیز حل نکالا جس پر سب لوگ مطمئن ہو گئے۔ آفتاب اسلام جزیرہ نمائے عرب کی سرزمین پر چمکا تو اس وقت عمر بن خطاب دائرہ شرک میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمنا کا اظہار کیا کرتے تھے کہ عمر بن خطاب اسلام قبول کر لے تاکہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو سکے اور شوکت اسلام کا مظاہرہ سرعام ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، الہی تجھے ان دو آدمیوں میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا کر دے، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب۔ جب سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئی تو عبداللہ بن حذافہ کے بھائی سیدنا حنیز بن حذافہ، جسے اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے کی سعادت تھی، کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئی اور ایمان و اطاعت کے ساتھ زیر سایہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو مشرکین نے جب المناک ایذا رسانی شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کو سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا اشارہ دیا، تو سیدنا حنیس کو بھی ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہو لیے۔ پھر مکہ معظمہ واپس آئے، جب دیکھا کہ ایذا رسانی دن بدن بڑھ رہی ہے تو مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ یہ ہجرت بھی اس وقت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کی اجازت دی تھی۔ مدینے پہنچ کر دونوں میاں بیوی انصار کے محلے میں راضی خوشی رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر چیز جگمگا اٹھی۔ رسول اللہ کی آمد اور وہاں زندگی بسر کرنے سے اللہ کی قسم مدینہ منورہ کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو گیا۔ جب غزوہ بدر برپا ہوا جس میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے غلبہ اور عزت لکھ دی تھی، تو سیدنا حنیس اس غزوہ میں شہسوار کی حیثیت سے شریک تھے اور دلی تمنا تھی کہ انہیں شہادت نصیب ہو۔ جب یہ جنگ میں شریک ہوئے تو ان کے جسم پر بہت زخم آئے، لیکن یہ بدستور دشمن سے لڑتے رہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کافروں کا کلمہ پست ہو۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو سیدنا حنیس زخموں سے چور مدینہ منورہ واپس آئے۔ بلاخر یہ جلیل القدر صحابی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا کر شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع الغرقد کے قبرستان میں جلیل القدر صحابی سیدنا عثمان بن مظعون کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔ اس طرح دردناک جدائی پیدا ہو گئی اور سیدنا حفصہ نو عمری ہی میں بیوہ بن خطاب کو اپنی نوجوان بیٹی کے 18 سال کی عمر میں بیوہ ہونے پر دلی دکھ تھا۔ جب بھی سیدنا عمر بن خطاب گھر میں داخل ہوتے تو طبیعت میں شدید درد محسوس کرتے، جب بھی اپنی بیٹی کو غمگین دیکھتے تو اداس ہو جاتے۔ طویل لوگ غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیٹی کی شادی کر دی جائے تاکہ اس کا غم قدرے ہلکا ہو سکے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کو شادی کی پیشکش کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان کو پیشکش کی، انہوں نے کہا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا عمر بن خطاب کو دونوں کی بے روحی سے دلی صدمہ ہوا اور غصہ آیا، اور اس صورتحال کو دیکھ کر قبیلہ خاطر ہوئے اور ان کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حفصہ سے وہ شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان اس سے شادی کرے گا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رشتہ طے کر لیا اور سیدنا عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی، اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی رقیہ کی وفات کے بعد عثمان بن عفان کی شادی اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں سیدنا حفصہ کی بڑی قدر و منزلت تھی، بلکہ ازواج مطہرات میں انہیں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سیدنا حفصہ کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ میرے ساتھ مقابلہ کیا کرتی تھی۔ ازواج مطہرات میں بعض اوقات بشری تقاضے کے پیش نظر کبھی کبھی باہمی چشمک، غیرت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ دکھائی دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بیویوں کے درمیان مدنی معاشرے میں اپنے جان نثار صحابہ بلکہ اپنی ساری امت کی تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ نظام کی روشنی میں کرتے اور ان سب کا ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر گامزن کرتے۔
बुखारी और मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा से मरवी है, फरमाती हैं रसूल अल्लाह सैयदना ज़ैनब बिन हजिश के यहाँ शहद पिया करते थे और इसके पास कदरे ज़्यादा वक़्त ठहर जाया करते थे। मैंने और हफ्सा ने बाहमी मशवरे से इत्तफाक कर लिया कि रसूल अल्लाह हम में से जिसके पास भी तशरीफ़ लाएं तो वो आपसे ये कहे, क्या आज आपने मगाफिर यानी गोंद खाई है? मुझे आपसे गोंद की बू आ रही है। आपने फरमाया नहीं तो मैंने ज़ैनब बिन्त हजश के पास शहद पिया है। मैं हल्फ उठाता हूँ कि आइंदा शहद नहीं पीऊंगा और ये बात आप किसी को नहीं बताएं। उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी उम्र के खूबसूरत तरीन दिन बसर किए। हर रोज़ इल्म, फ़िक़्ह और अताअत इलाही के जज्बे में इजाफा होता रहता। आखिर ये फैज़ क्यों हासिल ना होता? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ़ व शफ़ाफ़ और खालिस व इल्मी और रूहानी चश्मे से सैराब होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो अज़वाज मुतहहरात के साथ मुसाफ़क़त किया करती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए कोई कसर बाकी ना उठा रखती थी। इनकी हर मुमकिन ये कोशिश होती कि रसूलुल्लाह हरदम शादा व फरहा रहें। वो हर लम्हा इसके लिए कोशां रहती। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हफ्सा को तलाक दे दी, जिससे इनका दिल टूट गया। इनकी निगाहों में दुनिया अंधेरी हो गई। इन्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि इनका महबूब नज़र हामद अल्लाह का प्यारा नबी इन्हें तलाक दे देगा और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम 7 आसमानों से गुजरते हुए वही लेकर इनके पास आएंगे और इन्हें अपना फैसला वापस लेने के लिए कहेंगे और फिर वो अपना फैसला वापस ले लेंगे। हदीस में मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हफ्सा को एक तलाक दे दी, फिर जिब्राईल के कहने पर इसे रुजू कर लिया। जिब्राईल ने अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से इनको ये पैगाम भेजा, बिलाशुबा वो रोजेदार और इबादत गुजार हैं और वो जन्नत में आपकी बीवी होंगी। सुभान अल्लाह, ये एक ऐसी बड़ी फजीलत है कि तमाम फजाइल इसके सामने दस बदस्ता खड़े शर्मिंदा दिखाई देते हैं। यह उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा का अल्लाह के नज़दीक बुलंद तरीन मुकाम व मर्तबा है। उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा इल्म, फ़िक़्ह और तक़वे के हवाले से बड़े बुलंद मुकाम पर फाइज थी। इन औसाफ की वजह से इन्हें रसूलुल्लाह के नज़दीक बड़ा ही बाइज़्ज़त मुकाम हासिल था। सैयदना हफ्सा को खिलाफत राशिदा के दौर में और ख़ास तौर पर इनके वालिद मोहतरम सैयदना उमर बिन खत्ताब के दौर खिलाफत में बड़ी अहमियत हासिल थी। अक्सर औक़ात इल्मी और फ़िक़ही मामलात में सैयदना उमर सैयदना हफ्सा की राय को तरजीह देते। एक दफ़ा उन्होंने इनसे दरियाफ्त किया, क्या एक शादीशुदा औरत अपने खामद के बगैर कितना अरसा बआसानी गुजार सकती है? उन्होंने बताया 4 या 6 महीने। उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा ने अपने सरताज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुखलिस और वफादार बीवी का किरदार अदा किया और अपने खामद को शादा और फरहान रखने के लिए किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सादत और खुशगवार खाना नबी में मुसलसल हैमज़न रही, यहाँ तक कि वो दिन आ पहुँचा जिसमें सारी कायनात पर अंधेरा छा गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सैयदना हफ्सा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर दिल गम व अंतों की अमाजगाह बन गया। जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म मसनद खिलाफत पर जलवाए अफरोज़ हुए तो उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा के तर्ज़ अमल में कोई फ़र्क पैदा नहीं हुआ। वो बदस्तूर अबादत गुजार में ही रही, बल्कि वो अपने वालिद गिरामी के दौरे खिलाफत में और ज़्यादा आबदा और ज़ाहदा के रूप में नजर आईं। वो अपने ज़ुहद व तक़वा और इबादत और रियाज़त से अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करती। उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा अपने वालिद गिरामी की बुजुर्गी, तरजीहात, ज़ुहद व तक़वा, अदल व इंसाफ और फतूहात का मुशाहिदा कर रही थी कि वो दिन आ गया जिसमें अबू लुलू मजूसी किरदार की खंजर जनी से हज़रत उमर फ़ारूक को कत्ल कर दिया गया। फ़ारूक आज़म जो जूदो सहा, इसारो कुर्बानी, अदलो इंसाफ और जुर्रत और शुजाअत के साथ भरपूर जिंदगी बसर करते हुए रूह मुतमइन्ना के साथ अब्दी नींद सो गए। इनकी बेटी सैयदना हफ्सा इनके पास जिंदगी के आखिरी लम्हात में आई और अपने बाबा की हालत देखकर आंखों में आंसू आ गए और रोती हुई बाहर निकलकर अपने बाबा के बारे में कहने लगी, अल्लाह के यहाँ इनके लिए अजर सवाब लिख दिया गया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा गया, सैयदना उमर बिन खत्ताब के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह उन पर रहम करे, वो अल्लाह की कसम इस्लाम का दोस्त और यतीमों की जाए पनाह था। वो ईमान के ठहराव की जगह और एहसान की इंतहा था। वो कमज़ोरों की मजलिस और खुलफा की जाए पनाह था। वो हक का कला और लोगों का मददगार था। वो अल्लाह के हक को सब्र, तहम्मुल और सवाब की नीयत से ले खड़ा हुआ, यहाँ तक के दीन को गालब कर दिया और मुल्क फतह किए, और इसने टीलों और चटील मैदान में अल्लाह का जिक्र किया। खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की रज़ा के लिए हर वक्त बावकार और इसका शुक्रगुजार रहा। जिसने इससे बुग़्ज़ किया, इसने अल्लाह ने क़यामत तक इसको सज़ा दी।
मोमिनीन सैयदना हफ्सा ने कुरान मजीद की अमानत अपनी गर्दन पर उठाई। इन्हें सैयदना अबू बकर सदीक ने मुंतहिब किया ताकि कुरान मजीद के जिस नुस्खे को ज़ैद बिन साबित ने जमा किया वो सैयदना हफ्सा के पास महफूज कर दिया जाए। वो सारे औराक जिनमें कुरान मजीद को जमा किया गया था वो सब के सब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत तक उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा के पास महफूज रहे। फिर इन सब को एक ही मसहफ में जमा कर दिया गया। सैयदना अबू बकर सदीक ने सहाबा कराम का कसीर तादाद पर मुश्तमिल एक लश्कर मुसलिमा कज़ाब के मुकाबले के लिए तैयार किया। सहाबा कराम इसे नबर्द आजमा हुए। अल्लाह ने इसे रुसवा किया और वो इस मामले में कत्ल हो गया। इस लड़ाई के दौरान सहाबा कराम अल्लाह से जा मिले। बहुत से हफाज कुरान कसीर तादाद में जामे शहादत नोश कर गए। कहते हैं जंग यमामा में वो 700 सहाबा कराम शहीद हुए जो कुरान मजीद के हफाज थे। बास का कहना है शहीद होने वालों की तादाद इससे ज्यादा थी। इससे पहले बाकी हफाज अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं या शहीद कर दिए जाएं, कुरान मजीद को जमा करने के बारे में सोच का आगाज हुआ। सैयदना ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं जंग यमामा के बाद सैयदना अबू बकर सदीक ने मेरी तरफ पैगाम भेजा। सैयदना उमर बिन खत्ताब इनके पास तशरीफ फरमा थे। सैयदना अबू बकर सदीक ने फरमाया उमर बिन खत्ताब मेरे पास आए हैं। उन्होंने ये बात कही है कि जंग यमामा की सख्त तरीन मारकाराई में कुरान मजीद के बहुत से हफाज कुरान जामे शहादत नोश कर गए हैं। मुझे अंदेशा है कि अगर इसी नौयत की तेज तरीन मारका आराई वतन में और हुई तो और मजीद हफाज जामे शहादत नोश कर जाएंगे और कुरान मजीद का बेशतर हिस्सा जाया हो जाएगा। मेरी राय ये है कि आप कुरान मजीद को जमा करने का हुक्म दे दें। हज़रत अबू बकर सदीक ने उमर बिन खत्ताब से कहा हम वो काम कैसे कर सकते हैं जिसे रसूलुल्लाह ने नहीं किया। हज़रत उमर फारूक ने कहा अल्लाह की कसम यह काम बेहतर है। सैयदना अबू बकर फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब मुसलसल मुझसे मुतालबा दोहराते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे शरह सदर अता कर दिया और मैंने भी यही राय कायम कर ली जो राय उमर बिन खत्ताब की थी। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने अपने दौरे खिलाफत में सैयदना हफ्सा की तरफ पैगाम भेजकर इनके पास जिस कदर सहीफे थे मंगवा लिए ताकि कुरान मजीद को एक ही मसहफ में जमा कर दिया जाए। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है फरमाते हैं हुज़ैफा बिन यमान सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास आए। वो अहले इराक के साथ मिलकर आर्मीनिया और आज़रबाईजान फतह करने के लिए अहले शाम से लड़ रहे थे। जब हुज़ैफा बिन यमान ने कुरान मजीद की किरात पर इख्तिलाफ देखा तो घबरा गए। सैयदना हुज़ैफा ने हजरत उस्मान से कहा इस उम्मत को संभाल लीजिए इससे पहले कि ये किताबें अल्लाह की किरात में इख्तिलाफ करने लगे जिस तरह का यहूद और नसारा ने इख्तिलाफ किया है। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा की तरफ पैगाम भेजा कि आपके पास जितने सहीफे हैं हमारे पास भेज दें, हम इन्हें नकल करके आपको वापस कर देंगे। उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा ने वो सब सहीफे उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तरफ भेज दिए जो इनके पास मौजूद थे। तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, सईद बिन आस और अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हशाम की तरफ भेज दिया। उन्होंने इन सहीफों को नकल किया। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने 3 कुरैशी अहबाब से कहा अगर तुम में और ज़ैद बिन साबित में कुरान की किताबत के दौरान किसी लफ्ज़ में इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो इस लफ्ज़ को कुरैशी ज़बान में लिखना क्योंकि कुरान मजीद कुरैशियों की ज़ुबान में नाजिल हुआ। उन्होंने ऐसे ही किया। जब उन्होंने सभी सहीफों को नकल कर दिया तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने वो सहीफे सैयदना हफ्सा को वापस कर दिए और कुरान मजीद के वो नुस्खे दुनिया के कोने कोने में भेजे जो नकल किए थे और ये हुक्म नाफिज कर दिया कि इसके अलावा किसी के पास कुरान मजीद का अगर कोई भी नुस्खा हो तो इसे तल्फ कर दिया जाए। 21 हिजरी को उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा ने महसूस किया कि अब अल्लाह से मुलाकात का वक़्त करीब आ गया है। माह रमज़ान के अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि सैयदा हफ्सा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पाकर अपने अल्लाह को जा मिली। ये खबर मदीने के कोने कोने में फैल गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कुरान मजीद की हाफसा वफ़ात पा गई हैं। ये खबर सुनकर सहाबा आए ताकि इनके जनाजे में शरीक हों। इनके आगे आगे सैयदना अबू हुरैरा और अबू सईद हज़री तशरीफ ला रहे थे। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस वक्त मदीने का गवर्नर मरवान बिन हुकम था और इन्हें बकीउल गरकद के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। दफन करने से पहले इनकी कब्र में इनके दोनों भाई अब्दुल्ला और आसिम और भतीजे सालिम, अब्दुल्ला और हमजा उतरे। ये तीनों अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा की वफात 63 साल में हुई। उन्होंने अपने माल और सदके के बारे में अपने भाई को वसीयत कर रखी थी। इस तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा ने जूदो सहा और इसारो कुर्बानी के लिहाज से भरपूर जिंदगी गुजार कर दार फानी से दारुल बका की तरफ कूच किया। उम्मुल मोमिनीन सैयदना हफ्सा रहलत फरमा कर अपने महबूब हावन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जन्नतुर रहमान में पहुंच गई।
ان کے بارے میں جبریل نے نبی کریم سے کہا تھا وہ روزے دار اور عبادت گزار ہیں اور وہ جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ سے راضی، اور وہ جنت الفردوس میں اپنے رب کی جوار رحمت میں جا مقیم ہوئی۔ بلا شبہ اللہ قارئ ساز اور قادر مطلق ہے۔